हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना बोलेगा। तो आज हम बात करेंगे टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के बारे में। इससे पहले कि मैं दोनों मूवीज के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं आपको लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर दिखाना चाहूंगा। जो भी हुंदा है वो हम कर दें या फिर हम हवा विच एवं ही उड़ते फिर दें यहाँ से वहाँ। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। आपका बच्चा अलग है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल। मैं ले लेता हूँ। ओए, तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है। मैं जो किया है वो हमेशा याद रखी। भाग लाल भाग! अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते, पर जिंदगी में चमत्कार होंगे हैं जी। हाँ, मम्मी कहती थी कि हर एक दी अपनी तकदीर होंदी है, कि सारा कुछ लिखिया होंदा है। मैंने नहीं पता कितने लिखिया है सब, किसने लिखिया है और क्यों लिखिया है जो लिखिया है। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं भरता। क्या पता हमें है कहानियां हैं, कहानी में हम। तो ये था लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉरेस्ट गंप का ट्रेलर। Hello, my name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid as a stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I. Run, Forrest! Hey, stupid! Run! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I could run like the wind blows. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. They even put me on a thing called the All-America team, where you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Now, maybe it's just me, but college was very confusing times. Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time. Have you given any thought to your future? Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. You're a damn genius. You are going to be a general someday, Gump. Yes, drill sergeant! They sending me to Vietnam. Listen, you promise me something, okay? If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Okay. Where are you boys from in the world? Alabama, sir. You twins? No, we are not relations, sir. For some reason, what I was doing seemed to make sense to people. Forget about me. Get yourself out. Been awarded the Medal of Honor. How come? Now, my mama's always telling me how miracles happen every day. Some people don't think so. Jenny! But they do. You can come home with me,
my house in Greenbow. I'll take care of you. Why are you so good to me? You're my girl. Paramount Pictures presents Tom Hanks, I'm not a smart man, but I know what love is. Robin Wright, Will you marry me? I'd make a good husband, Jenny, You would, Forrest. but you won't marry me. Gary Sinise, I never thanked you for saving my life. and Sally Field. My boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. A film by Robert Zemeckis. What's my destiny, Mom? You're going to have to figure that out for yourself. The world will never seem the same once you've seen it through the eyes of Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. तो जैसा कि आपने देख ही लिया है, दोनों मूवीज़ के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। इन सिमिलैरिटी का एक कारण ये भी है कि आमिर खान ने पैरामाउंट स्टूडियोज से फॉरेस्ट गंप के रीमेक के राइट्स 2018 में खरीदे थे, तो इसलिए दोनों मूवीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटी है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा एक्चुअली में टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। अब थोड़ा सा मैं आपको फॉरेस्ट गंप की स्टोरी के बारे में समझाना चाहूँगा। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति एक बस स्टॉप पे बैठा है और वो आने जाने वाले अनजान लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहा है। ये जो बंदा बस स्टॉप पे बैठा है, इसका नाम फॉरेस्ट गंप है और ये बचपन से थोड़ा सा ऑटिस्टिक है। मूवी में कहीं पे बताया नहीं गया है कि इसे ऑटिज्म की बीमारी है, बट आप देख के बता सकते हैं कि शायद हाँ ये बच्चा ऑटिस्टिक है, हाँ ये बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। फॉरेस्ट गंप हर आने जाने वाले व्यक्ति को चॉकलेट का डब्बा पेश करके कहता है कि मेरी माँ कहती थी कि लाइफ चॉकलेट के बॉक्स की तरह होती है, हमें नहीं पता कब हमें क्या मिलेगा, कभी हमारी फेवरेट चीज़ भी मिल सकती है और कभी ऐसी भी हो सकती है जो हमें नापसंद आए। सिमिलरली हमारी लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान की माँ ने उन्हें कहा होता है ज़िंदगी गोलगप्पे के समान होती है कि पेट चाहे भर जाए लेकिन नीयत नहीं बढ़ती। तो डायलॉग काफ़ी हद तक सेम रखने की कोशिश की गई है, हमारे इंडियन वे में चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है मूवी में। यहाँ पे बस स्टैंड पे फॉरेस्ट गंप अब अपनी लाइफ स्टोरी इन अनजान लोगों को सुनाना शुरू करता है। तो बताता है कैसे बचपन में उसे पोलियो था। अब फिर से अगेन मूवी में कहीं बताया नहीं गया है कि बच्चे को पोलियो है, लेकिन जिस प्रकार से बच्चा चल फिर नहीं पाता है, इसके मसल्स बहुत वीक हैं, आई गेस हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद फॉरेस्ट को पोलियो था। सभी बच्चे इसका मजाक बनाया करते थे और जिस दिन ये स्कूल फर्स्ट टाइम जाता है उस टाइम उसके टीचर्स इसकी माँ को बताते हैं कि आपके बच्चे का IQ लेवल बिलो एवरेज है, यानी नॉर्मल नहीं है आपका बच्चा। और ऐसा सुन के इसकी माँ नाराज़ हो जाती है और फॉरेस्ट को बोलते हैं तुम जैसे हो दैट इज ओके। फॉरेस्ट को स्कूल के फर्स्ट डे में एक लड़की मिलती है जेनी, जिसको वो पहली नज़र में प्यार कर बैठता है। जेनी और फॉरेस्ट दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन कुछ लोग फॉरेस्ट को चिढ़ाने लगते हैं और उस पर पत्थर मारने लगते हैं। तो जेनी फॉरेस्ट को भागने को बोलती है। फॉरेस्ट भागने की कोशिश करता है लेकिन पाँव में लगे ब्रैकेट्स की वजह से अच्छे से भाग नहीं पाता है, लेकिन अचानक भागते भागते उसके ब्रैकेट्स टूट जाते हैं और फॉरेस्ट उन सबसे दूर निकल जाता है। यहाँ पे मूवी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई गई है, अचानक फॉरेस्ट बड़ा हो गया है और अब भी वो भाग रहा है और इतना तेज भागता है कि उसका सिलेक्शन स्टेट टीम में हो जाता है फुटबॉल के लिए। देखिए अमेरिका में फुटबॉल हमारे वाली फुटबॉल नहीं होती, हमारे वाली फुटबॉल को अमेरिका में सॉकर बोलते हैं। उनके यहाँ फुटबॉल कुछ हद तक रग्बी जैसा गेम होता है जिसमें एक टीम एक गेंद को इस एरिया से दूसरे एरिया की तरफ लेके जाती है और उसमें बहुत सारा आर्मर पहनना पड़ता है क्योंकि दूसरी टीम आपको रोकने की पूरी कोशिश करती है। तो फुटबॉल की टीम में फॉरेस्ट की एंट्री हो जाती है और वो नेशनल चैंपियंस तक बन जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अवार्ड भी देते हैं। सिमिलरली हमारी लाल सिंह चड्ढा के अंदर
फुटबॉल तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से तो यही लग रहा है कि आमिर खान यहाँ पे एक एथलीट बन गए हैं, एक रनर बन गए हैं। मे बी शायद इसमें भी वो कुछ अवार्ड्स जीतेंगे। कॉलेज पास आउट होने के बाद फॉरेस्ट गंप फौज में भर्ती हो जाता है। उस टाइम वियतनाम वॉर चल रही होती है और इसको वियतनाम भेज दिया जाता है। वियतनाम पहुंच के फॉरेस्ट की दोस्ती होती है एक बबा नाम के बंदे से। बबा उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, एक्चुअली में उसका बैचमेट होता है। यहाँ एक थोड़ा सा फनी सीन है, जब ड्रिल सार्जेंट फॉरेस्ट से पूछता है कि तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है, तो फॉरेस्ट उसका जवाब देता है कि जो भी आप मुझे करने को कहोगे मैं वो करूंगा, यही मेरी लाइफ का गोल है। जिसको सुन के ड्रिल सार्जेंट खुश हो जाता है। वॉर और बैटल में ट्रेन होने के बाद फॉरेस्ट को लड़ाई के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसके प्लेटून का कमांडर होता है लेफ्टिनेंट डैन। कुछ दिन तक ये लेफ्टिनेंट डैन के अंदर फॉरेस्ट काम करता है और जंगलों में पेट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक दिन उनके ऊपर अटैक होता है। इस अटैक में फॉरेस्ट का बेस्ट फ्रेंड बबा मारा जाता है। बबा के मरने के बाद फॉरेस्ट अपने बाकी के घायल लोगों को बचाना शुरू कर देता है और काफी लोगों को बचा लेता है। तभी फॉरेस्ट की नजर पड़ती है लेफ्टिनेंट डैन के ऊपर। लेफ्टिनेंट डैन की दोनों टांगे उड़ चुकी हैं, वो उसका आधा ही शरीर बचा है। लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को बोलता है कि मुझे छोड़ के चले जाओ, जैसे मेरे पूर्वज लड़ाई में मारे गए ऐसे मैं भी मरना चाहता हूँ, मुझे मत बचाओ। फॉरेस्ट उसकी बात नहीं मानता और उसकी भी जान बचा देता है। उसकी जान बचाने पर लेफ्टिनेंट डैन उसे बहुत कोसता है। युद्ध में लोगों की जान बचाने के लिए फॉरेस्ट को मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। और एक एंटी वॉर रैली में जब फॉरेस्ट अपनी स्पीच दे रहा होता है, तभी उसकी बचपन की दोस्त, जो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते लेकिन उसका लव इंटरेस्ट जेनी अचानक से वहां आ जाती है। दोनों कई साल बाद वहां पे मिलते हैं। ट्रेलर को देख के हमें ऐसा लगता है कि आमिर खान भी एक वॉर पे गए हैं। मोस्ट लाइकली ये वॉर कारगिल वॉर है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे हीरोइक काम किए हैं, जिसके लिए उन्हें एक मेडल भी दिया गया। उसके बाद इंडिया गेट पे उन्हें एक स्पीच देते हुए दिखाया गया है, जहाँ पे करीना कपूर उनकी गर्लफ्रेंड का रोल कर रही हैं या लव इंटरेस्ट का रोल कर रही हैं। वो वहाँ पे आती हैं, उनसे बात करती हैं, लेकिन फिर उनको बोलती हैं कि लाल हमारा कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से फॉरेस्ट गंप का लव इंटरेस्ट जेनी उसे छोड़ के चली जाती है, उसी प्रकार से करीना भी यहाँ पे आमिर खान को छोड़ के जा रही हैं। फॉरेस्ट ने अपने फ्रेंड बबा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया होता है कि वॉर खत्म होने के बाद वो आर्मी से डिस्चार्ज लेंगे और एक कंपनी खोलेंगे, बबा गंप कंपनी, जो कि फिशिंग करेगी श्रिम्प की। श्रिम्प यानी झींगा मछली आप कह सकते हैं, सबसे छोटे टाइप की जो झींगा मछली होती है उसे श्रिम्प बोला जाता है। तो श्रिम्प की फिशिंग का बिजनेस खोलने का दोनों ने सोचा था। तो अपने वादे के अनुसार बबा के मरने के बावजूद फॉरेस्ट अपने बचे कुचे पैसों से एक बोट खरीदता है और फिशिंग करना शुरू कर देता है श्रिम्प्स की। उसे एक साथी की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो जाता है अपने लेफ्टिनेंट डैन के पास। लेफ्टिनेंट डैन इस टाइम एक अल्कोहलिक नशेड़ी बन चुका है, वो जीना नहीं चाहता है। फॉरेस्ट को मिलने के बाद उसे काफी गालियां देता है, लेकिन फिर फॉरेस्ट की बात मान के वो उसका पार्टनर बन जाता है। एक दिन अचानक तूफान आ जाता है और उस एरिया की सभी शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट और डैन की शिप, जो कि ऑलरेडी समुद्र में थी, वो बच जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा श्रिम्प की फिशिंग करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। और ऐसा करके फॉरेस्ट और डैन एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। मूवी में दिखाया गया है कि डैन अपना कुछ पैसा एप्पल कंपनी में भी लगाता है, जिसको फॉरेस्ट सोचता है शायद कोई फ्रूट बेचने वाली कंपनी है। एप्पल में पैसा लगाने की वजह से डैन और फॉरेस्ट दोनों मिलियनियर्स बन जाते हैं। फॉरेस्ट अपने कमाए हुए पैसों का 50% अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड बबा की फैमिली को भी भिजवाने लगा, क्योंकि उसको अब भी लगता था ये आइडिया बबा का है, इसलिए उसको उसके परिवार की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे फॉरेस्ट को दिखाया गया है कि वो वापस अपने घर चला जाता है और अपनी कैंसर से मरती हुई माँ की सेवा पानी करने लगता है। लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर में देख के तो ऐसा कोई सीन नहीं लगा कि वो शायद फिशिंग करेगा। मे बी शायद ट्रेलर में ना डाला गया हो, मे बी शायद ऐसा कोई सीन शूट ही ना किया गया हो, अभी मैं नहीं बता सकता। इसके लिए हमें मूवी देखनी पड़ेगी। इस दौरान 10 साल निकल जाते हैं और फॉरेस्ट का जो लव इंटरेस्ट है जेनी, उससे एक दिन मिलने आती है और उसे बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों वन नाइट स्टैंड करते हैं और उसके बाद अगले दिन जेनी फॉरेस्ट को छोड़कर चली जाती है। जेनी के चले जाने के बाद फॉरेस्ट काफ़ी उदास हो जाता है और वो मैराथन पे निकल पड़ता है। बिना किसी कारण के फॉरेस्ट लगातार 3 साल तक भागता रहता है, पूरे देश को कवर करता है और एक दिन अचानक से भागना बंद कर देता है। सिमिलर सीन हमारे लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर में भी देखने को मिला है कि आमिर खान, जिनके बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई हैं, वो भागते ही जा रहे हैं और बर्फीले इलाके रेगिस्तान में से वो निकल के जा रहे हैं। अचानक से दौड़ना बंद कर देने के बाद फॉरेस्ट वापस आके अपनी लाइफ में बिजनेस संभालना शुरू कर देता है और एक दिन अचानक उसे जेनी का लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है उसका करंट एड्रेस और
और वो फॉरेस्ट को मिलने के लिए बुलाती है। इसीलिए हमारा फॉरेस्ट बस स्टैंड पे बैठ के बस का इंतजार कर रहा है, लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहा है। जिन लोगों को अभी तक स्टोरी सुना रहा होता है वो अभी तक उसकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी स्टोरी कंप्लीट होती है ये लोग बोल के चले जाते हैं, यार हमने खूब फेंकने वाले लोग देखे, तुम जैसा फेंकने वाला पहली बार देखा है। और ऐसा कह के ये लोग फॉरेस्ट को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। बस आती है, फॉरेस्ट उसमें चढ़ता है और जेनी के घर पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने पे उसे पता लगता है जेनी एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही है और उसका एक बेटा भी है। जेनी उसे बताती है ये सिर्फ उसका अकेली का बेटा नहीं है, ये एक्चुअली में फॉरेस्ट का बेटा है और उसने उसका नाम रखा होता है फॉरेस्ट गंप जूनियर। फॉरेस्ट उससे पूछता है कि इतने साल बाद उसने उसे क्यों याद किया, तो जेनी उसे बताती है कि वो एक वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे वायरस का लिटरली बताया नहीं गया कौन सा वायरस है, मे बी इस टाइम पीरियड की सेटिंग के हिसाब से हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस भी हो सकता है, क्योंकि जेनी काफ़ी सेक्सुअली एक्टिव थी और ड्रग्स भी लेती थी, तो शायद HIV वायरस भी हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली स्टेट नहीं किया गया है कि जेनी को कौन सा वायरस है और वो क्यों मरने वाली है। लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ लाल सिंह चड्ढा को ट्रेन में ट्रैवल करते हुए दिखाया गया जहाँ वो अनजान लोगों से बात कर रहा है। तो मे भी करीना कपूर ने उसे अपने पास बुलाया है ये बताने के लिए कि उसका एक छोटा सा बेटा है और करीना मरने वाली है, इसलिए अब उसे संभालना है अपने छोटे से बेटे को। फॉरेस्ट गंप के लास्ट में जेनी और फॉरेस्ट आखिरकार शादी कर लेते हैं और शादी के 1 साल बाद जेनी मर जाती है। मूवी के लास्ट में फॉरेस्ट को अपने इस बेटे को स्कूल भेजते हुए दिखाया गया है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। मे बी सिमिलर केस हमारे आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा में भी हो, मे बी आमिर खान अपने ऐसे बेटे से ही मिलने जा रहा है और उसे अभी तक पता नहीं है, और मे बी करीना कपूर शायद मर जाएंगी जैसे जेनी मर गई थी फॉरेस्ट गंप के अंदर। अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि मूवी फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज़ तो होंगी मूवी के अंदर। और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा इंडियन मसाला लगा के, बॉलीवुड मसाला लगा के इस मूवी को पेश किया जाएगा। जिन्होंने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी है उनको देखने में बहुत एंटरटेनिंग लगेगी मूवी और उनको यूनिक लगेगी मूवी। जिन्होंने फॉरेस्ट गंप देखी हुई है उनको भी अच्छी लगनी चाहिए मूवी, क्योंकि एक इंडियन पर्सपेक्टिव ना काफ़ी यूनिक होता है। वेस्टर्न कल्चर में कुछ चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती है और हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती हैं, तो मैं देखना चाहूँगा आमिर खान ने उन एस्पेक्ट्स को इस मूवी के अंदर कैसे पेश किया है। तो अन्ना के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरी मूवीज़ ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले टाइम। बाय बाय।